कितनी बार डांट खाओगे उसके बाद सीखोगे? हम्म। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. Those who wish to answer, you may raise your hand or write A in the chat box. ओके, हिमांशु शुरू करिए. पेज नंबर के साथ शुरू करना बेटा. यस मैम. मैम पेज नंबर 15. मैम ग्लॉसरी. Ma'am, universal adult franchisee. This is a very important aspect of democratic societies. It means that all adults, those who are 18 and above citizens, have the right to vote, irrespective of their social or economic backgrounds. ओके. हिमांशु बात एक सही बार है. पेज नंबर बताना. 15 पेज नंबर है. फर्स्ट आंसर का देना. Ma'am, 15 page number. इनसाइड ग्लोसरी. मैम Glossary. नेक्स्ट में आया पीछे. हिमांशु आंसर का पेज नंबर बताना. 15. आंसर का ये 15 है. वो ग्लोसरी में है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. बेटा ये वाला पोर्शन भी लो, ग्लोसरी से उसकी डेफिनेशन लो और उसके बाद ये वाली लाइन लो. That it is an essential aspect of all democracy, the idea of universal adult franchise based on idea of equality, because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities, has one vote. Okay? दोनों चीजें लो. मैम द आइडिया से लेके वोट तक. देखो सुनो, लैंग्वेज को चेंज करना सीखो, केवल बुक में से कॉपी पेस्ट नहीं करना है. मैंने आइडिया समझा दिया, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना शुरू करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कौन से है? रुक जाओ. हार्दिक, थोड़ा सा ना क्लास में ध्यान दिया करो, बस डिस्टर्ब करते हो तुम. मैम वो मेरा थोड़ा कॉल आ गया था मैम, मैं हट गया था. बेटा तुम्हारा कॉल आ गया था, तुम हट गए थे, तुम दूसरों को नहीं पढ़ने दोगे. अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है तो आप YouTube पे फिर से देखिए, अगर आपकी गलती की वजह से मिस हो रहा है तो. ऐसे तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, हर कोई अपने अपने फोन पे लगे रहो. यस त्रिशा, गो अहेड. मैम सेकंड क्वेश्चन इज इन पेज नंबर 14. एक बार जरा क्वेश्चन भी तो पढ़ दिया करो ताकि मुझे समझ में आ जाए क्या पढ़ा रहे हो. Reread the box on Article 15 and state two ways in which this article address inequality. हाँ, The answer is the two ways in which Article 15 address inequality are follow as: it prevents discrimination on basis of religion, caste, etc.
It allows access to public places for all citizens, irrespective of region, caste, gender, economic status, etc. Okay. Next question. Gaurik. Yes, ma'am. In what ways was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? Ansari. Ansaris? Hmm. गौरिक पेज नंबर कहाँ गया गौरिक? Yes, ma'am. तो बता तो सही आंसर. मैम मुझे ये वाला मिला नहीं था. अच्छा. आरुष बताओ. Yes, ma'am. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. The आरुष पेज Ansaris, नंबर page number 9. The Ansaris, their apartment to them. The Ansaris' dignity was also hurt when the person refused to lease their apartment to them. Arush, your voice is very low. यस आरुष योर वॉइस लो कोई बात नहीं आरुष. ठीक है. कौन सा बताया पेज नंबर? Ma'am, page number 9. 9. रुक जा बेटा. इसके अंदर हम थोड़ा सा करेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि and Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. यहाँ पर यहाँ पे लिखिए ओम प्रकाश schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel that he was less than equal to other students in the school. उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ से लिखेंगे द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट वेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम. ठीक है. मैम दूसरी एक बार और बताना फर्स्ट लाइन. Om Prakash Valmiki and Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. मेरा तुम लोगों को दिख रहा होगा कर्सर को फॉलो करो, मार्क कर लो. Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other classmates in the school. दूसरी लाइन. तीसरी लाइन यहाँ से Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them. ठीक है, हो गया. ग्लोसरी सबने लिखी ली होगी, अगर नहीं लिखी है तो लिख लेना. ग्लोसरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आंसर नंबर 4 बताइए. आतिश है, बताओ. ओके मैम. मैम पेज नंबर 10. बोलते जाओ, बोलते जाओ. Fifth line, Constitution, first that every person is equal before the law. Is the every person from the
president of the country to Kanta, a domestic worker has to obey the same laws. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, race, caste, place of birth, or whether they are female or male. Third, every person has access to all public places, including playground, hotels, shops, and markets. All persons can use publicly available wells, roads, and bathing gates. Fourth, untouchability has been abolished. नहीं बेटा, इतना लंबा हमें नहीं लिखना है, हमें इसमें ये लिखना है बस द रिकॉग्निशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, तो इसका हम डैश लगा के लिखेंगे दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन कान टू कांता होगा, अ डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉज। अब इसके बाद एक लाइन आप ये लिखेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ चैट बॉक्स में, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स इक्वालिटी। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ये लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, खुद करिएगा, लिखिएगा कॉपी में। चलिए, तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और अब तो तुम लोगों की क्लास ही नहीं है, क्यों? नो मैम, इसके बाद एक क्लास है। मतलब मैं कह रही हूँ अब तो छुट्टियां लग रही है ना तुम्हारी। यस मैम। मेरी तो लास्ट क्लास है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। रुको, मुझे देखने दो। मैम मेरे बाद छुट्टियां मेरी। अब मुझे बताओ क्या करें, हमारे पास 15 मिनट है और हम कुछ नया शुरू कर नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, छुट्टियों में क्या करोगे मेरे लिए? हम आप कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए। मैम ज्योग्राफी में कोई प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट मैं अभी इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि पिछले साल ना थोड़े चेंजेस हो गए थे, आर्ट इंटीग्रेशन बेस्ड प्रोजेक्ट करने के लिए आ गए थे, तो जब तक वो क्लैरिफाई नहीं होता तब तक मैं प्रोजेक्ट नहीं दे सकती, क्योंकि दो दो बार प्रोजेक्ट बनवाने का कोई मतलब नहीं है। और कुछ? मैम कुछ और वर्क दे दीजिए। तो बताओ ना क्या वर्क चाहिए तुम्हें, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जो बोलोगे वही दूंगी। मैम कोई इंटरेस्टिंग, क्या हम आप ही दे दीजिए कुछ भी। दूंगी? तो मैं ही तुमसे सजेशन मांग रही हूँ, एक तो तुम्हें मौका दे रही हूँ अपना होमवर्क चूज करने का, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। तुम्हें तो पता ही है मैं तुम लोगों की बहुत सुनती हूँ, बोल के तो देखो एक बार। मैम हिस्ट्री के 5 चैप्टर पढ़ के आना। कौन है तू, मैम कौन है, सारे। किसने बोला ये? मैम सूर्यांश। मैम सूर्यांश। ये इसने ना सुन लिया है कल जो हुआ क्लास 8th में, है ना, उनको पूरी बुक पढ़ने के लिए दी है, तो वहां से कॉपी करके अपना होमवर्क बता रहा है। मैम मैंने नहीं सुना, मैं 8th क्लास में हुई नहीं। अरे मैम चल, इसकी बहन है। मेरे को पता है तेरी दीदी है 8th क्लास में, ठीक है, मुझे नहीं बना बेवकूफ। सुना, वो तो ईयरफोन लगा के बैठती है। अरे तुम मैम जाओ, मैम किसी उन्हीं और, ने बता दिया होगा। किसी और यस को मैम। यस मैम। हम्म। और बताओ, ये तो नहीं दूंगी, तुम लोग उल्टा सीधा पढ़ के आओगे, अभी तो हिस्ट्री शुरू ही नहीं हुआ है तुम्हारा।
मैम सारे सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर्स पढ़ के आने। देखो पढ़ना तो तुम्हें सभी कुछ है, होमवर्क ऐसा देना है जो तुम्हें चेक कर सकूं मैं कि तुमने किया कि नहीं किया। मैम गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म तुम बनाओगे? नो मैम। यस तो मैम, बना लेंगे। यस मैम। मैम आप मैम भेज बनाने देना, नहीं हम आता लोग है। कर लेंगे। मैम सीख लेंगे गूगल फॉर्म बनाना। नहीं 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 मैम नहीं, इतना इतना बड़ा गूगल होमवर्क फॉर्म में नहीं दे क्वेश्चन सकती आंसर हूँ। ढूंढिए। क्वेश्चन आंसर जब चैप्टर पढ़ाएंगे तभी तो ढूंढ पाओगे। मैम मैम हम मैम रीड कर लेंगे चैप्टर ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के एमसीक्यू बना मैम लेंगे ग्लोब ऊपर। बनाने के लिए। नहीं मैम मैंने बच्चों, पिछले साल ग्लोब ही बनाया मैम था प्रोजेक्ट में। बच्चों वाली चीज नहीं, अब तुम बड़े हो गए। मैम आप गूगल मैम फॉर्म जैसे भेज कि अभी मैं दीजिए ना। ज्योग्राफी के मैम एक दिन में गूगल फॉर्म करके भेजना है। एक साथ एक काम करो, सब लोग अपने माइक म्यूट करके एक साथ, माइक अनम्यूट करके एक साथ बोलो, ताकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। तमीज भूल गए हो तुम लोग, तुम्हें क्या सिखाया है मैंने? हम्म। भाई रेज योर हैंड, आस्क फॉर परमिशन, स्पीक अप, किसी ने रोका तो तुम्हें है नहीं। यस त्रिशा बोलिए। मैम ग्लोब जैसे कि अभी सेकंड चैप्टर में मैम वो चैप्टर है ना, उसमें मैम ग्लोब में क्रस्ट वगैरह सब दिखाया गया है, तो हम लोग ग्लोब बना सकते हैं जिसमें क्रस्ट और सब दिखाया गया हो। ना, ग्लोब क्लास यस सिक्स मैम। का प्रोजेक्ट है ये, ऐसी चीजें नहीं देना मुझे, मॉडल नहीं मैम देना। सब क्रस्ट वगैरह सब दिखाना हो। नहीं। तो आप एक चार्ट दे दीजिए जिसमें हमें वो एक ग्लोब बनाना है, और चार्ट पे उससे हमें मैम उस पे सारे कष्ट उसकी अर्थ की लेयर को हमें बेटा वो दिखाना है। डायग्राम तो तुम सबको बनाना ही पड़ेगा, और दूसरी चीज मैं चार्ट पेपर पे अभी इसलिए कुछ नहीं दे सकती क्योंकि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, और मुझे नहीं पता लॉकडाउन कब खुलेगा और तुम कब जाके चार्ट पेपर पेन पेंसिल सब लेकर आ पाओगे। हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा ये सब। हाँ जी, वैशाली बताओ। मैम आप एक दिन के लिए गूगल फॉर्म भेज दीजिए, जितने चैप्टर का अभी करवाया है उतने का। अच्छा तो वो तुम्हारा होमवर्क हुआ, मेरा होमवर्क हुआ, मुझे मेहनत करना पड़ेगी। तुम लोग तो 5 मिनट में सॉल्व कर देते हो, मुझे 1 घंटा लगता है गूगल फॉर्म बनाने में। हाँ आतिश है मैम बोलो। सारे प्लैनेट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले उसे इकट्ठा करके आपको बताना। बेटा क्लास सिक्स मैम से ऊपर निकल आए हो तुम इस साल, तो प्लैनेट्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हम लोग। गौरिक तुम तो बना दोगे, लेकिन बाकी लोग जो नहीं बना पाएंगे फिर उनका होमवर्क कैसे चेक करूंगी मैं? और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले मैं तुम्हें गूगल फॉर्म बनाना सिखाऊं। पिछले साल तो मैंने सिखाया था बाकी सारी क्लासेस को, सिर्फ तुम्हें ही शायद नहीं बताया था। यस मैम नहीं बताया था। हम्म। और सोचो। या अरे आतिशा, तुम तो पूरा कोर्स यूट्यूब से ही सीख लोगे, तुम्हें मेरी जरूरत क्या है? लेकिन हर किसी को नहीं कंफर्टेबल रहेगा, मुझे पूरी क्लास को साथ में लेके चलना है। और बताओ। गूगल फॉर्म के लिए मैं फेवर में नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें दो तो चैप्टर पढ़ाए, 2 चैप्टर में क्या गूगल फॉर्म बनाओगे तुम लोग? चलो मैं देती हूँ। एक काम करोगे तुम लोग स्टोरीज पता करोगे फ्रॉम टू एरा। नहीं नहीं, पीपीटी वगैरह मत बनाओ, स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो हमने पिछले साल किया था, याद है स्टोरी टेलिंग? यस यस मैम। यस मैम। हम्म।
चलो स्टोरी टेलिंग करेंगे। इट हैज टू बी प्राइमरीली इन इंग्लिश। प्राइमरीली इन इंग्लिश मतलब ज्यादातर इंग्लिश में होगी, बीच बीच में कहीं अटक जाओगे तो हिंदी में आ सकते हो, पूरी तरह शुद्ध हिंदी में नहीं बताओगे, ठीक है। और स्टोरी की थीम दे देती हूं मैं। स्टोरी की थीम होगी दिल्ली सल्तनत एरा या फिर मुगल एरा। मैम आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 3 और 4 है ये। मुगल काल की या दिल्ली सल्तनत काल की कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आप लोग हमें बताएंगे, सभी लोग। बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी जब आप इस पे सर्च करने जाएंगे। ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 मिनट तक की होनी चाहिए। थोड़ी सी या तो मोरल होना चाहिए स्टोरी में, या फिर वो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी उठा के बता दिया। स्टोरी में कोई मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। देवांशी, तुम थोड़ा सा दिमाग ना कम चलाया करो, ठीक है। मैप फाइल बनाएंगे। बता मुझे कौन सा मैप आएगा क्लास 7th में, बता जरा एक बार। क्लास 10th में नहीं हो तुम, क्लास 9th में नहीं, जो उनका होमवर्क मैं तुम्हें दे दूं। अब तो मैंने दे दिया। सब लोग जो है स्टोरी टेलिंग करेंगे मुगल एरा और दिल्ली सल्तनत एरा के ऊपर। ढूंढ के लाइए, तैयार करिए, अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए एकदम। और प्रेजेंटेशन का मतलब पीपीटी बनाना नहीं होता है, आपको बोल के बताना है। और कोई मैम किसी हमें का सवाल है क्या? छुट्टी बेटा, क्या मैंने चाइनीज में बोला था कि पीपीटी नहीं बनाना है? मुंह से बोल के बताई जाती है स्टोरी, पीपीटी में से रीड नहीं करी जाती है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। अभी तक जो पढ़ाया, या आगे किसी चीज का, या किसी भी रैंडम चीज के ऊपर। अभी हमारे पास 5-6 मिनट है, हम लोग बात कर सकते हैं, पूछिए। मैम अभी 20 मिनट है। बेटा मैं पूरे टाइम कहाँ क्लास लेती हूँ, तुझे तो पता ही है। ओके। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग इतना तेज चलते हैं, इतना तेज चलते हैं। और तुम लोग कुछ पूछते ही नहीं हो, मुझसे बात ही नहीं करते, तो मैं क्या करूं इतनी लंबी लंबी क्लास लेके तुम्हारा। Nobody has any question for me? नहीं गौरिक, पीपीटी का एक अलग हम लोगों को शायद टेस्ट लेना पड़े, इसके लिए मैं पीपीटी बचा के रख रही हूँ। और पहले कुछ अच्छे चैप्टर तो पढ़ाऊं, उसके बाद पीपीटी बनवाऊंगी। बगैर पढ़ाए कैसे पीपीटी बनवा लूं मैं तुमसे? दो तो चैप्टर हुए हैं टोटल, मजा ही नहीं आएगा। कोई सवाल कुछ भी नहीं पूछना चाहते हैं? बेटा वो खुद को ब्रोकन बताते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी ने सालों साल, सदियों सदियों ऑप्रेस किया। ऑप्रेस किया मतलब बुरी तरह ट्रीट किया, तो वो अपने आप को ब्रोकन नाम से आइडेंटिफाई करना चाहते थे। नहीं देवांशी, थैंक यू, इतना एहसान मत करो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का।
जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे उसके बाद देखेंगे कितना एक्स्ट्रा वर्क करना है। अभी पीरियड्स भी कम है और टाइम पता नहीं कितना मिलेगा। मैम बोलो। मैम जो इंडिया का नदर्न ईस्ट एरिया था मैम, वहाँ पर कौन सी डायनासिटी थी? बेटा वहां पे होम डायनेस्टी हुआ करती थी, और वो बेसिकली मेनलैंड इंडिया का पार्ट बहुत बाद में बना है। व्हाट इज अंसारी? बेटा अंसारी किसी का सरनेम है। व्हाट आर मिश्रास? बता मेरे को, कौन है मिश्रा? मैम सर ने। तो फिर अंसारी भी एक सरनेम है। हाँ देवांश। मैम व्हाट इज रेसिस्ट? रेसिस्ट मतलब वो लोग जो रेस के आधार पर लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। रेस क्या होती है? चमड़ी के ऊपर कुछ लोगों के ना डीएनए अलग होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पीपल बिलोंगिंग टू कोरिया, चाइना, मंगोलिया, उनका थोड़ा सा फेशियल फीचर्स अलग होते हैं, है ना। और आप यूरोपियंस के फेशियल फीचर्स और बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, इट्स डिफरेंट। आप अफ्रीकन के बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, डिफरेंट। तो तीन बेसिकली रेसेस हैं वर्ल्ड में, विच आर मोंगोलॉइड, ये जो कोरिया वाले हैं, कॉकेशियन जो कि यूरोप वाले हैं, और नीग्रोइड जो कि अफ्रीकन है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों एक दूसरे को जब अलग अलग ट्रीट करने लग जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम रेसिज्म कहते हैं। मैम इंडिया कौन से रेसेस में आता है? बेटा इंडिया मिक्स्ड रेस है। हम लोग वैसे कॉकेशियंस के पास ज्यादा हैं। ओके मैम। मैम कॉकेशियंस क्या होते हैं? अभी बताया मैंने, सुना तो तूने कुछ है नहीं। जो यूरोप में रहने वाले लोग होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर और जो फेशियल फीचर्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉकेशियन रेस के साथ। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? मैम अरे तुम मैम मैम करके शुरू क्यों करते हो? या तो रेज योर हैंड, राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स, बोलो। मैम व्हाट इज एम्पोरियम? एम्पोरियम एक जगह को कहते हैं जहां पर आप चीजों को स्टोर करते हैं। और कुछ? सिविल राइट्स मूवमेंट पिछली क्लास में पढ़ाया था, आई थी आप? It was a movement which was fought in America because the African Americans wanted their rights. और कोई सवाल किसी का? मैम बोलो। मैम जो धरना प्रदर्शन वगैरह होते हैं वो किसी हम्म, के खिलाफ या फिर किसी के साथ में होने के लिए भी कर सकते हैं ना? that is basically to show that you do not agree with what is happening, है ना। प्रोटेस्ट कहते हैं उसे। प्रोटेस्ट आप तब करते हैं व्हेन यू डू नॉट एग्री विथ समथिंग। अगर आप किसी के साथ हैं तो आप रैली निकालते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस मैम। हम्म, चलो फिर ठीक है। हैव फन इन वेकेशन। ज्यादा काम नहीं दिया है, अच्छे से करना, खुश रहना, बी सेफ, कीप योर फैमिली सेफ, घर से बाहर नहीं निकलना जब तक सब सही नहीं हो जाए। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड साई राम। चलो मैम, थैंक यू मैम, बाय Thank you, मैम। ma'am. बाय राम, Bye मैडम बेटा। थैंक यू bye मैम, bye बाय मैम, Sairil. Thank टेक you केयर ma'am. Take मैम, care मैडम madam. Bye थैंक यू ma'am. मैम, बाय मैम, टेक केयर मैम। बाय बेटा, टेक केयर, यू टू, बाय बाय। Madam, साइरम मैम।